Alcoholics Anonymous is a fellowship of people who share their experience, strength, and hope with each other that they may solve their common problem and help others to recover from alcoholism. The only requirement for membership is a desire to stop drinking. There are no dues or fees for AA membership. We are self-supporting through our own contributions. AA is not allied with any sect, denomination, politics, organization, or institution, does not wish to engage in any controversy, neither endorses nor opposes any causes. Our primary purpose is to stay sober and help other alcoholics to achieve sobriety. दोस्तों आप सबका स्वागत है रिवाइवर ग्रुप की हर फ्राइडे होने वाली 12 स्टेप्स एंड 12 ट्रेडिशन की मीटिंग में हमने अपने पिछले मीटिंग्स में स्टेप 4 तक रीडिंग किया और उस पर काफी चर्चा की भूषण और लकी जी ने। आज हम स्टेप 5 शुरू करने वाले हैं। सो मैं रीडिंग शुरू करता हूँ। भूषण, या आप कुछ एक इंट्रो देना चाहेंगे? नहीं, आप स्टेप पढ़िए और फिर जैसे हमने प्लान किया है आप रीड करिए, फिर लकी जी उसका एक सरल अनुवाद करेंगे और फिर हम लोग शेयरिंग करेंगे। ओके। स्टेप 5, admitted to God, to ourselves, and to another human being the exact nature of our wrongs. All of AA's 12 steps ask us to go to contrary to our natural desires. They all deflate our egos. When it comes to ego deflation, few steps are harder to take than 5, but scarcely any step is more necessary to long-time sobriety and peace of mind than this one. A experience has taught us we cannot live alone with our pressing problems and our character defects which cause or aggravate them. If we have swept the searchlight of step 4 back and forth over our careers and it has revealed in stark relief those experiences we'd rather not remember. If we have come to know how wrong thinking and action have hurt us and others, then the need to quit living by ourselves with those tormenting ghosts of yesterday gets more urgent than ever. We have to talk to somebody about them. So intense, though, is our fear and reluctance to do this, that many AAs at first try to bypass step 5. We search for an easier way, which usually consists of general and fairly painless admission that when drinking we were sometimes bad actors. Then, for good measure, we add dramatic description of that part of our drinking behavior which our friends probably know about anyhow. But of the things which really bother and burn us, we say nothing. Certain distressing or humiliating memories we tell ourselves ought not to be shared with anyone. These will remain our secret. Not a soul must ever know. We hope they'll go to the grave with us. लकी जी? यस, थैंक यू चंदू। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लकी, मैं शराबी हूँ। परमेश्वर कृपा, एक मार्गदर्शन, आज के दिन शराब के पहले घूंट से दूर हूँ। स्टेप 5 की शुरुआत में बिल, जो स्टेप 5 है, उसकी शुरुआत करता है कि ये स्टेप हमसे क्या डिमांड कर रहा है, इसके ये समस्या को कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, हमारी समस्या को बिल। तो एक ही सभी 12 कदम हमसे ये मांग करती है कि हम अपनी स्वाभाविक इच्छा के विपरीत चले। इसी से शुरू करता है बिल कि हम अपनी जो उपजत प्रवृत्तियां और जो नेचुरल डिजायर्स और नेचुरल कैरेक्टर इंक्लिनेशन बन जाते हैं हमारे कुदरती तौर पे, हम उसके विपरीत जान के बात करते हैं। हमारे अहंकार को तोड़ने की बात करते हैं, और जहां पे अहंकार को तोड़ने की बात आती है, कम करने की बात आती है, 5वां कदम ये सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे कठिन भी है। लेकिन लंबे समय तक संयम और मन शांति बनाए रखने के लिए इससे ज्यादा असरकारक शायद ही कोई स्टेप हो, ये बिल कहता है। अब वो बिल अगले पैरा में समस्या का थोड़ा सा स्वरूप समझाता है हमें
कि ए के अनुभव ने हमें ये सिखाया कि हम उन गंभीर समस्याओं और अपने दोषों के साथ नहीं जी सकते जो इन समस्याओं को पैदा करती है और बिगाड़ देती है। हमारे चरित्र दोष उन समस्याओं को पैदा करते हैं, और अगर कोई समस्या बाहर से आई है उसे और भी बिगाड़ देते हैं। और जब हम स्टेप 4 यानी कि चौथा कदम जब हमने लिया है, और चौथे कदम के ऊपर जब हम काफी हद तक गहरी सोच करके लिखते हैं, तो ये साफ साफ दिखाई देता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे हम याद नहीं करना चाहते। शायद ऐसे बुरे कटु अनुभव हों जो हमारी गलत सोच और गलत कर्मों ने खुद को भी नुकसान पहुंचाया है, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाया है। तो उन बीते कल की डरावनी यादों के साथ रह पाना ये बड़ा असहनीय और खतरनाक भी हो जाता है। बिल हमें बताता है कि बहुत सारी चीजें, मेरे अपमान, मैंने लोगों को किए अपमान, मेरे बहुत से गहरे ऐसे अपराध जो मैं छुपा के रखना चाहता हूं, ये खतरनाक भी हो सकते हैं। इनके लिए किसी के साथ में बात करना जरूरी है। अब बात करने में क्या चीजें आड़े आती है, बिल अगले पैरा में, तीसरे पैरा में हमको ये समझाता है कि क्या चीजें आड़े आती है। हमारा डर, हमारा डर सबसे पहले आड़े आता है इसमें। किसी पे ट्रस्ट कैसे करूं, और हम अनिच्छा इतनी गहरी होती है कि हम 5वें स्टेप को टालने की कोशिश करते हैं और कोई आसान रास्ता ढूंढने लग पड़ते हैं कि कन्फेशन करना ही है ना, 5वां स्टेप लेना है। तो फिर हम क्या करते हैं कि अक्सर बस इतना करते हैं कि हम हल्के फुल्के ढंग से ये स्वीकार कर लेते हैं कि शराब पीते समय हम कभी कभी बुरा व्यवहार करते थे, और फिर उस स्वीकार को थोड़ा बड़ा दिखाने के लिए हम अपने पीने के उस किस्से को थोड़ा नाटकीय ढंग से कह देते हैं। और ऐसे किस्से तो जो शायद मेरे दोस्त पहले से ही जानते हों, ऐसे किस्से की बात करते हैं। तो हमारा डर हमारा एक ऑब्स्टिकल है। और ये शुरुआत के दिनों में, ये शुरुआत के इसके अंदर बिल हमारे को ये 4 पैरा में ये समझाने की कोशिश करता है, और लास्ट में डिनायल की बात करता है। चंदू ने जो लास्ट पैरा पढ़ा उसके अंदर कुछ ऐसी बातें जो हमें एक्चुअली में परेशान करती है और अंदर से तकलीफ देती हैं, उनके बारे में हम कुछ भी नहीं कहते हैं। हम ऊपरी ऊपरी तौर पे बात कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे डिनायल का पार्ट बताता है। कुछ पीड़ादायक या अपमानजनक यादों के बारे में हम ये कहते हैं कि यार ये तो मैं किसी से शेयर नहीं करूंगा, ये तो मेरा सीक्रेट है, ये तो बड़ा गहरा सीक्रेट है, किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहता है। और हम ऐसे लोग हैं कि हम ये उम्मीद रखते हैं कि ये बातें, ये मेरी सीक्रेट्स, ये मेरे अपमान, ये सारे मेरे साथ में ही खत्म हो जाएंगे। तो पहले 4 पैरास में बिल इसकी जरूरत, ये समस्या का स्वरूप, इसमें आने वाली अड़चनें, और फिर बाद में एक मेरे जैसे शराबी का अपने स्वभाव के विपरीत जाने में आने वाला डिनायल, वो नकारात्मक पार्ट, उसकी बात करता है। यस क्वेश्चन। थैंक यू लकी। नमस्ते भाइयों, मेरा नाम पूषण है, मैं एक शराबी हूँ। हाय भगवान की भूषण। कृपा और आप सबकी मदद से आज के दिन शराब के पहले गुट से दूर हूँ दोस्तों, और बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ ये जो किताब को बारकाई से एक एक लाइन को देखते हुए उसमें जो शब्द प्रयोग किए हैं, इस्तेमाल किए बिल ने, उनको समझ के उसकी मनस्थिति और वो जो क्या व्यक्त करने का, जो भाव व्यक्त करने का जो प्रयास कर रहा है, उसको समझने का प्रयास करना ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। कई बार क्या होता है, हम सालों बीत जाने के बाद में हमारा जो एक्वायर्ड नॉलेज है वो हम लोग ज्यादा शेयर करते रहते हैं, बट जब भी हम लोग बिल की कहानी, बिल की जुबानी सुनते हैं, बिल के विचारों को उसकी जुबानी सुनते हैं, तो उसके पीछे का जो एक खूबी है, उस थॉट है, उस स्टेप के पीछे का, वो समझने में बड़ी आसानी होती है दोस्तों। जैसे पिछले 3 मीटिंग्स हम लोगों ने 4 स्टेप किया। सवाल पूछना चाहूंगा कि कितने लोगों ने 4 स्टेप अपना लिखना चालू किया है, क्योंकि हमने कई सारा चर्चा किया, उसका महत्व के बारे में बात किया, उसकी खूबियों के बारे में बात किया, उसके तरीकों के बारे में बात किया, और अंतिम चरण में हमने वो एक आपके लिए
एक अलग ढंग से वो स्टेप लेने का तरीका, एक कैलिफोर्नियन इन्वेंटरी भी शेयर कर दिया। तो ये शेयर करने के बाद में कितने लोगों ने ये लिखना शुरू किया है, ये एक जानने जैसी चीज होगी। खैर, अ, तो ये जो स्टेप्स है, ये स्टेप्स हमें क्या दिखाती है, क्या सिखाती है? तो ये हमें अपने आप की तरफ एक ऑब्जेक्टिव नजर से देखने को सिखाती है। पहले हम अपनी शराब के लिए औरों को जिम्मेदार पकड़ रहे थे, स्थिति, परिस्थिति, लोग, इनको हम लोग जिम्मेदार पकड़ रहे थे। लेकिन हम लोग चौथे कदम में जान लिए कि भाई बेसिकली गड़बड़ हमारे ही अंदर थी, हमारी ही इंस्टिंक्ट्स जो थी, हमारी जो मूलभूत प्रवृत्ति थी, वो गड़बड़ थी। और ये जब इंस्टिंक्ट्स इन कोलाइजन, जब भी हमारी इंस्टिंक्ट्स और लोगों की इंस्टिंक्ट्स, इनका जब भी क्लैश हुआ, तो हमारी रिलेशनशिप्स खराब हुई। तो हमें अपना रोल दिखाई देने लगा कि यार मैंने गलत किया, मैंने लोभ में, मैंने जेलसी में, मैंने गुस्से में, मैंने डर से ये चीजें की, जिसके वजह से मेरे ये रिश्ते कम खराब हो गए। सो फोर्थ स्टेप ने हमको एक आईना दिखाया, चौथे कदम ने हमको अपने ही तरफ, अपनी सतसत विवेक बुद्धि के कांच से देखने को सिखाया। तो बिल कहता है कि हमने ये बात तो समझ ली कि हमारे नेचुरल डिजायर्स के खिलाफ है सब स्टेप्स। नेचुरल डिजायर्स यानी क्या? तो हमने फोर्थ स्टेप को पढ़ते ये सीख लिया कि हम हमारे इंस्टिंक्ट्स के गुलाम थे, हमारे सेंसेस के गुलाम थे। यानी जहां सवाल आया, कोई भी सेंस हो, खाने का स्वाद, अगर कुछ अच्छा लगता है तो हमने ओवर ईटिंग किया, हमने बहुत जरूरत से ज्यादा किया। हमारी जो न बुझने वाली प्यास थी, वो हर हमारे सेंसरी प्लेजर के साथ में हमारी न बुझने वाली प्यास थी। फिर वो सेक्स इंस्टिंक्ट हो, यानी हमारा टच, या हमारा टेस्ट, या हमारी साइट, तो ये चीजों को हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। और हमने सोचा कि हमारी खुशी ये सब चीजें पाने में है, औरतें पाने में, पिक्चरें देखने में, महंगी चीजें खरीदने में, ज्यादा पैसा कमाने में, यही हमारी शांतता, हमारा आनंद है। ये हम सोचते सोचते हम बहक गए। लेकिन हमको पता चला कि इन चीजों को भागते भागते जो भी आनंद मिला वो क्षणिक था, वो थोड़े ही समय के लिए हमको आनंद था। उसके बाद में पेन ही था, उसके बाद में हमको तकलीफ ही ज्यादा हुई। हम लोगों ने ये चीजें पाने के लिए जो शॉर्टकट इस्तेमाल किए, जो लोगों को इस्तेमाल किया, जो परिस्थितियों का इस्तेमाल किया, उसकी वजह से हम लोग मैनिपुलेटिव बन गए। हम लोगों ने लोगों की कदर नहीं रखी, और ये चीजें हमने पाई जरूर, लेकिन उसका आनंद हमको ज्यादा समय तक नहीं दे पाए। और फिर बिल फिर पूछता है कि भाई अगर सही मायने में, अगर मुझे शांतता चाहिए, चित्त शांति चाहिए, मन की प्रसन्नता चाहिए, तो मुझे अपने आप को पूरी तरह से बदलाव करना होगा, अपने आप की तरफ देखना होगा। और जो भी ये मेरे पुराने मतलबी टाइप के जिंदगी के जो तौर तरीके थे, इनको बदलना होगा। ये बात का एहसास हमें चौथा कदम खत्म होने तक हमको मिल जाता है। सो इसके लिए बिल्डअप एक शब्द कहता है कि भाई बड़ी बारकाई से ये करो, क्योंकि जितनी बारकाई से आप ये एनालिसिस करोगे, उतनी बारकाई, उतना ज्यादा बदलाव आपको अपने अंदर जो लाना है उसके बारे में एहसास होगा। तो चलो, यहां तक हमको पता चल गया कि ये कोई भी चीज हम करना नहीं चाहते थे। हर स्टेप अगर देखते हैं, हम शराब के सामने सरेंडर करना नहीं चाहते थे, हमको पहले स्टेप ने सरेंडर करने को लगाया। हम हमारी जिंदगी की अस्त व्यस्तताओं को स्वीकार करना नहीं चाहते थे, लेकिन ए ने हमको समझाया, भाई ये अस्त व्यस्तता तो समझेगा नहीं तो सुव्यवस्था की तरफ जा ही नहीं पाएगा। हम
अपने आप को ही और अपनी शराब को उच्च शक्ति मानकर चल रहे थे। हमको पता चला कि भाई मानवीय शक्ति मदद कर नहीं सकती है, तुमको कोई बाहरी शक्ति लेनी होगी, खुद के बलबूते पर, खुद के विल पावर पर तुम ये नहीं संभल सकते हो। तो हमको हमारे मन के खिलाफ जाकर ये एडमिट करना पड़ा कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरे विल पावर की बस बात नहीं है। तो ये भी मेरे मन के खिलाफ जाना पड़ा, और फिर आगे जाके बताया कि भाई तो तेरी बस की बात नहीं है, लेकिन ये शराबियों को ये समझ में आ चुका है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आकर ये सब लोग रुक चुके हैं, तो तू भी रुक पाएगा, इस बात का विश्वास रख और अपनी इच्छा और जीवन इन लोगों के हवाले कर डाल। अब जो लोगों को मैं ठीक से जानता भी नहीं था, लेकिन उनके अनुभव कथन में से मुझे समझ में आ रहा था कि इनको वो खुशी प्राप्त हुई है, उनको ये मुक्तता प्राप्त हुई है। इसके लिए मेरे नैसर्गिक प्रवृत्ति के खिलाफ जाकर मैंने अपनी इच्छा और जीवन इन लोगों के हाथ में सौंपने की तैयारी की। ये तीनों स्टेप्स मेरे मूलभूत प्रवृत्ति के खिलाफ थे। उसमें से और भी टेरिबल चीज, यानी बाकी लोगों के गुने ब्लेम गेम छोड़कर अपने आप के अंदर को झाकर अपनी गलतियों को स्वीकार कर अपने आप को बदलने की तैयारी कर, यह चौथा कदम भी कोई आसान नहीं था। लेकिन बिल कहता है ये चारों से और भी मुश्किल है आपका पांचवा कदम। उसका कारण यह है कि अभी तक जो भी खिचड़ी चल रही थी या आपके मन ही मन में चल रही थी, अभी आपको ये किसी अन्य व्यक्ति के साथ में बात करनी होगी। और जब तक मेरे मन में था तब तक ठीक था, मैं अपने आप को कमीना बोल सकता हूं, मैं अपने आप के कमीनापन को स्वीकार कर सकता हूं। लेकिन अभी अपना कमीनापन दूसरे के सामने खोलकर दिखाना, उसके लिए एक अलग लेवल ऑफ मेंटल प्रिपेयर्डनेस की जरूरत है। मेरे मन को एक अलग तरीके से तैयार करने की जरूरत है। और बिल कहता है कि सभी 12 के 12 स्टेप्स में से कुछ जो सबसे मुश्किल कदम है उनमें से एक कदम ये है। तो नेचुरली कई सारे लोग सोचेंगे कि यार ये स्किप कर दिया तो, यानी मैं वैसे भी मीटिंग में शेयर करता हूँ ना यार, मेरी नौकरी गई, मेरी बीवी छोड़ के गई, मेरे को बाप ने घर से बाहर निकाल दिया, मेरे को ये सब तो मैं शेयर करता हूँ ना, मेरा नुकसान क्या हुआ वो मैं शेयर करता हूँ। बिल कहते हैं भाई तू जो आमतौर पर जो शेयर कर रहा है वो नुकसान क्या हुआ वो मत शेयर कर, वो नहीं, हम उसके बारे में नहीं बात कर रहे। हम उसके बारे में बात कर रहे कि तू क्या चीज था जिसके वजह से तेरे को ये सब चीजें सहनी पड़ी। सो इसके लिए वो जो ट्विस्ट है कि मेरे साथ क्या हुआ ये बोलना आसान है, लेकिन वो होने के लिए मेरा उसके पीछे क्या रोल था ये बताना हमेशा मुश्किल होता है। लेकिन बिल कहता है कि अगर अगर आपको लंबे समय की सोबराइटी चाहिए और उससे भी ज्यादा मन की शांतता अगर चाहिए, तो भाई ये स्टेप लिए बगैर पर्याय नहीं है, ये तो लेना ही पड़ेगा। सो मुझे याद आता है एक किस्सा। मैं जब भी फिफ्थ स्टेप लेने के लिए मेरा जो इनिशियल स्पॉन्सर था उसके साथ में बैठा, तो मैं जानता नहीं था कि मैंने वो लिखा तो था, लगभग 2 नोटबुक्स भर के मैंने अपने बारे में लिखा हुआ था, अलग अलग प्रसंगों के बारे में, किस्सों के बारे में, रिश्तों के बारे में। लेकिन जब भी उनके साथ में बैठने का सवाल आया तो उन्होंने हम दोनों खड़े हुए, उन्होंने मेरे को सामने खड़ा किया, हम दोनों ने एक दूसरे के हाथ में पकड़े और उन्होंने बोला पुशन लेट्स बिगिन विद अ स्मॉल प्रेयर, तो एक प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। तो मैं बोला ठीक है, तो मुझे लगा ये अपना गॉड ग्रांट में द सेरेनिटी वाला सेरेनिटी प्रेयर से शुरुआत करेगा, लेकिन नहीं, उसने वो प्रार्थना नहीं बोली। उसने ये प्रार्थना बोली कि हे ईश्वर, मतलब मुझे एग्जैक्टली प्रार्थना आज याद नहीं है, लेकिन उसका मतलब मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं कि हे ईश्वर, हमने बहुत सारी गलतियां की है और हमारी गलतियों का हमें दिल से अफसोस है और हम अपनी इन गलतियों को सुधारना चाहते हैं। और ये गलतियां सुधारने की शुरुआत करने के पहले हम
हम दो व्यक्ति, दो शराबी एक दूसरे के सामने बैठकर हमारा अनुभव खत्म करने जा रहे हैं। हे भगवान, तुम यहाँ उपस्थित हो और हमारा ये जो चर्चा होने वाला है, जो एक दूसरे के साथ में शेयरिंग होने वाला है, उसको सही दिशा में गाइड करो। आप हमारे विटनेस बनो, बी अ विटनेस टू दिस वंडरफुल प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ पेन एंड लॉस। तो वो कहता है कि आप हमारी इस ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया के साक्षी बनो और हमें हमारे जो ये उद्दिष्ट है उससे ढलने मत दो। ये उसने प्रार्थना बोली। और वो प्रार्थना बोलने के बाद में जो भाव निर्माण हुआ, एक शांतता निर्माण हुई और हम दोनों एक दूसरे के सामने कुर्सी लेकर बैठ गए। और मुझे बोला कि अभी वो बोलेगा कि अभी खोल तेरी नोटबुक और पढ़ना चालू कर, लेकिन नहीं दोस्तों, उसने पहले अपना शेयरिंग करना शुरू कर दिया। वो जानता था कि मेरे जैसे नए सदस्य को सडनली अपने अंदर की भीषण बातें, गलत चीजें अनोखे आदमी के सामने खुलने में बड़ी दिक्कत होगी और मेरे अंदर से हिचकिचाहट होगी और मैं ये बोल नहीं पाऊंगा, या बोलूंगा तो मैं उसको कम बताने का प्रयास करूंगा। इस बात का उसको पूरा एहसास था और इसीलिए उसने अपने बारे में बात करना शुरू कर दिया और उसके बारे में उसने कुछ ऐसी चीजें बात की जिनकी वजह से मैं भी अचरज में पड़ गया कि यार, इतना सारा बहकने के बाद में ये आदमी ठीक हो सका। क्योंकि उसने अपने गैर संबंधों के बारे में बात की, अपने पत्नी के साथ में की हुई प्रताड़ना के बारे में बात की, अपने फैमिली के साथ में उसने किए हुए आर्थिक जो गैर व्यवहार थे उनके बारे में उसने बात की, लोगों को कैसे उसने चीट किया उसके बारे में उसने बात की। और कुछ चीजें इस प्रकार से मेरे सामने रखी कि मेरे अंदर से एक भाव आने लगा कि मुझे बोलना चाहिए, मुझे भी ये खाली करना चाहिए। और उसने बोला कि भूषण, तेरी किताब तो बहुत लंबी लग रही है, 100 पन्ने की लग रही है, बट लेट अस बिगिन विथ व्हाट इज बॉइलिंग द मोस्ट। तेरे अंदर सबसे ज्यादा जो धगधगाट कर रही है, जो तकलीफ दे रही है, वहां से शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, मुझे मालूम था कि सबसे बुरा अनुभव, ये सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल था, सबसे शर्मिंदगी वाला जो अनुभव था, वो मेरा सबसे बड़ा मुझे रोकने वाली वो स्टेप थी। अगर उसको मैं पार कर सका तो बाकी चीजें बोलना मुझे बहुत आसान होने वाला था। इस बात का उसे भी एहसास था और मुझे भी एहसास था। फिर भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी और मैंने फिर भी हिम्मत करके, क्योंकि उसने अपने बीवी के साथ में की हुई प्रताड़ना से शुरुआत की थी, इसके लिए मैंने भी उसी टॉपिक को लेकर, मैंने कैसे शादी के बाद भी कैसे अपने पुराने संबंधों को जारी रखा और मैंने कैसे अपने बीवी को विलन बताते हुए उसका सिंपथेटिक फायदा लेकर कैसे ऑफिस में मैंने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया और कैसे मैंने लोगों को, लड़कियों को इस्तेमाल किया मेरे इन कहानियों से, इन स्टोरीज से, इसके बारे में मैंने जिक्र किया। और मुझे लगा कि मैं खुलकर बात कर रहा हूं। तो उसने मुझे बोला, भूषण 2 मिनट। बोलता है, तू लड़कियों के साथ में तेरा कितना सक्सेस हुआ वो मेरे साथ बता रहा है कि तेरे को अफसोस किस बात का हुआ, तेरे को शर्म किस बात की लगी, तेरे को खुद के प्रति घृणा किस बात की लगी, उसके बारे में बात कर रहा है। और सडनली मुझे रियलाइज हुआ कि बोलते बोलते मैं बोस्ट कर रहा था कि मैंने ये इसके साथ, उसके साथ ऐसा, इसके साथ उसके, मैं कितने शिकार किए। ये मेरा कहानी का मतलब जो था वो मतलब बदल चुका था। मेरे कहानी में अब अफसोस कम
और नरेशन ज्यादा बन गया था। और वो बोला इससे तेरे को फायदा नहीं होगा, इसको तेरे को छुटका नहीं मिलेगी, तेरे को जो शांतता मिलनी है वो नहीं मिलेगी। जो जो गंदगी है ना, जो बोलने के लिए तो कतराता है ना, जो शर्माता है ना, जो शायद तो किसी के सामने बोल नहीं पाएगा ना, वहां से शुरुआत कर। और मुझे रियलाइज हुआ कि ये आदमी ही कैन सी थ्रू मी, मेरे में से अंदर वो झांक कर देख सकता है। और फिर मैंने वो एक अनुभव, जो मैं आज ओपनली यहाँ पर नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पर नए पुराने बहुत सारे मेंबर्स है, बट 1 to 1 अगर कोई मेरे साथ में शेयर करने को बैठता हूँ तो मैं उसके साथ में ये अनुभव जरूर कथन करता हूँ। लेकिन एक अनुभव जिसकी मुझे जबरदस्त शर्म थी, और मैं सोचता था कि ये मेरा सीक्रेट कभी किसी को पता नहीं चले, ये पता चले तो मैं अपने आप को मुंह दिखाने के लायक नहीं समझ रहा था। ऐसी एक मेरे जिंदगी में मैंने की हुई हरकत थी, उसको मैंने बात किया, और वो बोलते बोलते मेरा गला सूख गया। वो बोलते बोलते मैं थोड़ा सा अंदर से कांप रहा था, क्योंकि मुझे अंदर से समझ हो रही थी कि ये मैं बताऊंगा, ये अगर गलती से कहीं बाहर निकल गई बात तो साला मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। बट मुझे समझ में आ रहा था कि ये मुझे बोलना है, ये चाहता है कि मैं इसे खुला करूं, या मैं बात करूं इसके बारे में। और मैंने वो बात की, और वो बात करने के बाद में वो बोला आज के लिए इतना ही काफी है। मैं बोला नहीं, मुझे मुझे और बोलना। बोलते हैं, नहीं, फर्स्ट डाइजेस्ट दिस। तो ये बहुत बड़ा टप्पा आज कंप्लीट कर पाया है, इसके ऊपर विचार कर, इसके ऊपर शांतता से। बोलते हैं जब भी हम दोनों बैठे हुए हैं तो सिर्फ हमारा मन नहीं बोल रहा है, हमारे अंदर की सत विवेक बुद्धि जो ईश्वरी रूप से हमारे बीच में उपलब्ध है, आज वो तेरी सत विवेक बुद्धि ने ये कहानी सुनी है। ये तेरे मन में थी, लेकिन आज उसको प्रकट करने में, बोलने में तेरे को कितनी तकलीफ हो रही थी, ये तूने भी महसूस किया, ये मैंने भी महसूस किया है। और ये इसमें से छुटकारा पाने के लिए तू शांतता के ऊपर तूने ये जो भी आज व्यक्त किया है उसके ऊपर विचार कर। सो व्हेन आई सी दिस सेंटेंस के स्टेप फोर back and forth over it has revealed in stark relief those experiences we would rather not remember। हमारे अंदर से उन्होंने चौथे कदम ने वो अनुभवों को जागृत किया है जो मैं भूलना चाहता हूं, जो मैं याद नहीं रखना चाहता हूं। वो जाग गए हैं, वो जग गए हैं, उसकी वेदना, उसकी तीव्रता, उसकी जो जख्म है वो दोबारा जाग गई है। If we have come to know how wrong thinking and actions have hurt us and others, then the need to quit living by ourselves with those tormenting ghosts of yesterday gets more urgent than ever। ये जो पुराने, ये जो करतूतों के जो भूत मेरे ऊपर जो सवार है, इनको मेरे अंदर से जल्द निकाल देना चाहिए। इस बात का एहसास मेरे अंदर, वो जो प्रेशर माउंट होने लगता है कि बोल डाल, क्वेश्चन अभी खत्म कर, बोल ही डाल साला, आज आज खत्म ही कर डाल, वो अंदर से प्रेशर बढ़ने लगता है। वी हैव टू टॉक टू समबडी अबाउट देम। किसी ना किसी के साथ में इसके बारे में बात करनी ही होगी। इस बात का एहसास होने लगता है। डर तो जरूर लगेगा, क्योंकि ये मन के अंदरूनी कोने में दबी हुई चीज है। डर तो लगेगा, शेम लगेगा, गिल्ट लगेगा, हर चीज लगेगा, लेकिन ये बोलेंगे नहीं तो बिल कहता है आगे जाके कि सालों के बाद के सोवरेट के बाद में भी ये धोखा देने की संभावना ये रखते हैं। सो जो हम लोग मीटिंग रूम में अनुभव कथन करते हैं, ये हमारा फिफ्थ स्टेप नहीं है दोस्तों। वो खाली हमारा एक ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, एक अच्छी स्टोरी है, हमारा एक रिकॉर्ड, एक कैसेट बन चुका है। जो कैसेट में से कुछ जो अनुभव है उसके ऊपर ज्यादा तालियां पड़ती है, कुछ अनुभव फेंकने के बाद में लोग ज्यादा कान देकर सुनने लगते हैं, वो सब ड्रामेबाजी है। वो फिफ्थ स्टेप नहीं है।
अगर अगर कोई इस गलतफहमी में है कि मैं शेयरिंग में खुलेआम मैं सब कुछ बोल देता हूँ, वही मेरी पांचवा का नहीं, वो खाली बोस्टिंग है कि मैं इतनी बुरी तरह से गिर के भी कैसे खड़ा हुआ, मैंने कितने कत्ल किए, मैंने कितने लोगों की भावनाओं का, ये कितने करोड़ों के मैंने नुकसान किए, ये सिर्फ बोस्टिंग है। लेकिन उसके भीतर का जो गिल्ट एंड शेम जो है, वो मुझे पांचवें कदम में मेरे स्पॉन्सर के साथ में, ईश्वर के साथ में करने हैं। सो जो आखिरी पैरा इसमें है, few muddled attitudes have caused us more trouble than holding back on step 5. Some people are unable to stay sober at all. वो कहता है कि जो खुलकर ये अंदर का जो ये नॉशिएटिंग, ये जो गंदगी है वो बाहर नहीं निकलते हैं, ये लोगों को ज्यादातर शराब से दूर होते होते तकलीफ होती है। कई लोग तो शराब से दूर रह भी नहीं सकते हैं, या बार बार इनको पीना पड़ता है। ये चेतावनी दी है कि जब तक आपका घर ये साफ नहीं होगा, जब तक आपका ये कॉन्शियस, आपका मन, आपकी सतत विवेक बुद्धि आपके लोभी मन के ऊपर जब तक हावी नहीं होगी, तब तक आपको बार बार पीने की इच्छा होगी। और कई सारे लोग आज का पाउशर कल, आज का ड्रिंक कल, ये वन डे एट अ टाइम का प्रोग्राम फॉलो करते हुए जिंदगी में कई साल निकल गए होंगे। ऐसे भी लोग ये पायरी अगर स्किप करके आगे गए हैं तो इसकी उनको कीमत चुकती करनी पड़ेगी। इसके बारे में वो चेतावनी देते हैं। तो वो कहते हैं कि ये पुराने सदस्य भी अगर ये सही ढंग से ये क्लीनिंग ऑफ हाउस नहीं हुआ है तो दे विल सफर फ्रॉम इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, रिमोर्स एंड डिप्रेशन। ये चार के अगर आप शिकार हो, सालों बीत चुके हैं लेकिन अभी भी आपको चिड़चिड़ापन है, मन में डर है, पश्चाताप से भरा हुआ मन है, और की हुई करतूतों के ऊपर एक होपलेसनेस की, एक डिप्रेशन का भाव है, तो शायद आपका ये पांचवा कदम सही ढंग से नहीं हुआ है। और साल कितने भी हुए होंगे, ये बहाना नहीं है कि अभी मेरे को 15 साल हो गए, अब 20 साल हो गए, अब ये लेने की क्या जरूरत है। मुझे याद है कि एक सदस्य मेरे से लगभग दुगनी सोबराइटी वाले सदस्य मेरे साथ में आके उन्होंने अपनी फिफ्थ स्टेप ली थी, और मैं उसको बोला, यार मैं यू हैव मच मोर एक्सपीरियंस, आपके पास बहुत ज्यादा अनुभव है। बोलते हैं हाँ, लेकिन ये जो चीजें है मैं किसी के साथ बोल नहीं पाया हूँ, और मुझे ऐसे लगता है कि ये मैं तेरे साथ बोल पाऊंगा पर मुझे छुटकारा मिलेगा उसमें से। एंड वी हैड अ वंडरफुल टाइम। हम लोगों ने बहुत, क्योंकि उसके साथ में काम करते करते मुझे अपने बारे में और उसको खुद के बारे में बहुत सी सारी चीजें सीखने को मिली दोस्तों। सो चलो आगे बढ़ते हैं चौथे पैराग्राफ से। ओवर टू यू चंदू। Thank you, Bhushan. Yet, if AA's experience means anything at all, this is not only unwise, but is actually a perilous resolve. Few muddled attitudes have caused us more trouble than holding back on step 5. Some people are unable to stay sober at all. Others will relapse periodically until they really clean house. Even AA old-timers, sober for years, often pay dearly for skipping this step. They will tell how they tried to carry the load alone, how much they suffered of irritability, anxiety, remorse, and depression, and how, unconsciously seeking relief, they would sometimes accuse even their best friends of the very character defects they themselves were trying to conceal. They always discovered that relief never came by confessing the sins of other people. Everybody had to confess his own. This practice of admitting one's defects to another person is, of course, very ancient. It has been validated in every century and it characterizes the lives of all spiritually centered and truly religious people. But today, religion is by no means the sole advocate of this saving principle. Psychiatrists and psychologists point out the deep need every human being has for practical insight and knowledge of his own personality's flaws and for a discussion of them with an understanding and trustworthy person. So far as alcoholics are concerned,
AA would go even further. Most of us would declare that without a fearless admission of our defects to another human being, we could not stay sober. It seems plain that the grace of God will not enter to expel our destructive obsessions until we are willing to try this. What are we likely to receive from step 5? For one thing, we shall get rid of this terrible sense of isolation we have always had. Almost without exception, alcoholics are tortured by loneliness. Even before our drinking got bad and people began to cut us off, nearly all of us suffered the feeling that we didn't quite belong. Either we were shy and dared not draw near others, or we were apt to be noisy good fellows craving attention and companionship but never getting it, at least to our way of thinking. There was always that mysterious barrier we could neither surmount nor understand. It was as if we were actors on a stage, suddenly realizing that we did not know a single line of our parts. That's one reason we loved alcohol too well. It did let us act extemporaneously, but even Batchu's boomeranged on us. We were fully stuck down and left in terrified loneliness. Thank you. Over to you, Lucky ji. Lucky ji, unmute. Yes, now it is unmuted. ओके क्या है दोस्तों, ये कदम भले हमारे जिंदगी में ए में बड़ा लंबा अरसा हो गया है हमें, लेकिन फिर भी जब इसके ऊपर बातें होती हैं और सुनते हैं तो कुदरती है कि मैं भी उसी अवस्था में चला जाता हूं कि जहां पे अपने ऊपर देखने जाने वाली नजर थोड़ी और गहरी हो जाती है, आज के दिन में क्या है। सो अब आगे शुरू करते हैं, जहां बिल इस कॉन्फेशन की परंपरा को, इस स्वीकार करना जो है किसी और व्यक्ति के सामने, उसकी बात करता है कि भैया ये तो अपने दोषों को किसी दूसरे व्यक्ति के सामने स्वीकार करने की ये जो परंपरा है, ये हर युग में हमें देखने को मिलती है और ये उन लोगों के लिए विशेषता रखती है कि जो आत्मिक हैं या सच्चे धार्मिक रहे हैं। ये जो हम सिद्धांत की यहाँ बात कर रहे हैं, 5वां कदम का अगर मैं एक सिद्धांत की बात करूं तो एक ही प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें हमने बाहर से ली हुई, इनफैक्ट सारी चीजें बाहर से ली है। उसमें जो क्रिश्चियनिटी में कॉन्फेशन का प्रिंसिपल है वो यहाँ पे हमने उसको अपने प्रोग्राम में शामिल किया। तो इसके लिए बिल थोड़ा सा यहाँ धार्मिक संकेत देता है, लेकिन वो ये भी कहता है कि ये केवल धर्म तक ही सीमित नहीं है ये सिद्धांत। इनफैक्ट बहुत सारे साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट भी यही बताते हैं कि हर इंसान के भीतर अपने व्यक्तित्व की जो कमियां हैं उसको समझने और उन्हें किसी समझदार व विश्वसनीय व्यक्ति के साथ साझा करने की गहरी जरूरत होती है। जहां तक हम शराबियों का सवाल है, हम तो सबसे आगे चलते हैं। हम में से अधिकतर जो आज रिकवरी में है उनकी बात करता है कि हम बिना डर के अपने दोषों को किसी और इंसान के सामने स्वीकार न करें तो हम सोबर नहीं रह सकते, नहीं रह पाते, तकलीफ आती है, अड़चने आती है। यह बात तो बिल्कुल साफ है कि इस कदम को अपनाने की हिम्मत हमारे में इतनी जल्दी नहीं आती और इसके लिए जरूरी है कि ईश्वर की कृपा हो और हमारी विनाशकारी लतों और जुनून को हम समझ पाए। केवल ईश्वरी कृपा हमारी विनाशकारी लतों और जुनून को दूर नहीं कर सकती, ये भी हमें समझना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे धर्म का जो मार्ग है, जहाँ पे हम एक प्रार्थना करके किसी भगवान के हवाले कर देते हैं कि वो देख लेगा, उसके जगह पे आध्यात्मिक तत्वों में जब हम सोचते हैं कि ये धर्म का ही पार्ट है जो हमने अडॉप्ट किया है, लेकिन हम ये भी मानते हैं
कि हम जब तक अपने अंदर भीतर झांक के नहीं देखेंगे तब तक केवल और केवल ईश्वरी कृपा हमारे अंदर घुस करके हमारी इन विनाशकारी लतों और जुनूनों को दूर नहीं कर सकती। कई बार हमने वो सुना होता है ना, अभी इसका कुछ नहीं होगा, अगर करे तो भगवान ही करे। वो भावना ये होती है कि कोई ये खुद नहीं कर पा रहा है तो कोई इसके लिए करे, और कौन करेगा तो भगवान करे। इसी बात पे हम वो बात बोल देते हैं, जबकि हमें यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि हमारी श्रद्धा है, विश्वास है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो ये हो नहीं पाएगा। ईश्वर की कृपा अपने आप प्रवेश नहीं कर पाएगी। आगे बिल इसके फायदे की बात करता है कि स्टेप 5 से हमें क्या मिलने वाला है, और वो मिलने वालों में सबसे पहले उस लोनलीनेस और एक अकेलेपन की भावना से मुक्ति की बात होती है। मुक्त हो जाएंगे। ये अकेलेपन की भावना, वो कहते हैं ना कि पूरे भीड़ में भी अकेला रहने वाला इंसान एक अल्कोहलिक है, और वो अकेला अपने ही विचारों में खोया हुआ, कभी गुस्से में तो कभी शर्म से, पता नहीं अलग अलग भावनाएं शायद समस्या इंतजार आके दिमाग में जाती हों। तो हर शराबी अकेलेपन से पीड़ित होता है। ये हमारे इनफैक्ट वो बिल थोड़ा सा और पीछे जाता है यहाँ पे, और बताता है कि लोगों ने दूरी बनाने से पहले हमने शायद लोगों से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। हम मिसफिट हो गए थे। हम ये महसूस करते कि हम कभी पूरी तरह समाज के साथ में फिट नहीं हो पा रहे हैं, नहीं बैठ पा रहे हैं। कभी तो हम बहुत शर्मीले रहे और दूसरों के पास जाने की हिम्मत ही नहीं कर पाए, और कभी जोर जोर से बोलने लगे, गुस्सा आ गया। मस्त हम चाहते थे कि सब लोग मस्त मौला साथी बने, लेकिन फिर भी हमें वैसा अपनापन कभी नहीं मिला जैसा हम चाहते थे। हमारी नजर में हमने कभी वो नहीं पाया। तो एक रहस्यमय दीवार रही है। बिल उस अकेलेपन की परिस्थिति समझाता है और ये बताता है कि हमेशा एक रहस्यमय दीवार रही है जिसे न तोड़ पाए और न समझ पाए। कि मैं सरदारों के गुरुद्वारे में जाके भीड़ में बैठे हुए भी मैं अपने आप को अकेला पाता हूँ। वो क्यों? अगर आपको भी दोस्त ऐसी भावना आती है और कायम आपका साथ निभा रही है, तो ये कदम उस अकेलेपन की भावना को, उस यूजलेसनेस की फीलिंग को निकाल सकती है। अब ए में आने के अनुभव की बात यहाँ पे होती है अगले पैरा में, कि जब मैं ए में पहुंचा तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखा कि यार यहाँ पे अपनापन मिल रहा है, यहाँ पे लोग मुझे समझ रहे हैं, यहाँ पे मैं फिट बैठ रहा हूँ। वो सारे अनुभव, उन लोगों की जीवन शैली, उनका अकेलापन, उनके दुख दर्द, जो कुछ से भी जैसे जैसे मैं सहमत होता गया, वैसे वैसे मेरा मन रोमांचक, बेहद रोमांचक लगा, इधर कहता है बिल। और ये हम सभी ने महसूस किया दोस्तों। अगर अल्कोहलिक्स अनोनिमस की फेलोशिप में आने के बाद एक शराबी का अकेलापन कम से कम उस मीटिंग में और ए मेंबर्स के साथ नहीं गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो शराबी इच्छा लेके आता है, ये हम सब ने महसूस किया है। हम जल्दी ही हमें ये पता चल जाता है कि हम सामाजिक रूप से अकेले नहीं हैं जब ए में आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ समय के बाद वो अकेलापन फिर से आने लग पड़ता है। और जैसा अभी पूषण कह रहा था कि हम पूरी सच्चाई और ईमानदारी से अपने अंदर की उन तकलीफों को, उन शर्मनाक अनुभवों को बात नहीं कर पाते, तब तक फिर से वो कंटिन्यूस वो मीटिंग्स में से वो अपनापन मिलना कठिन हो जाता है। तो बिल वहां बताता है कि स्टेप 5 ही इसका जवाब है। यस पुष्प। मैं याद करने का प्रयास कर रहा था अभी। मैं काफी फॉर्चुनेट रहा हूँ, क्योंकि मुझे साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, धार्मिक लोग, ये सभी लोगों के साथ में
मेरे रिकवरी के इनिशियल स्टेजेस में इंटरेक्ट करने का मौका मिला। तो ये जब भी यहाँ पर जो बात छिड़ती है कि लर्निंग टू ओपन अप, अपने आप को खुलकर अपने बारे में बात करने को सीखना, ये जो चीज है इसका मुझे अ, एकदम शुरुआत शुरुआत से ही इसका बहुत लाभ हुआ है। सबसे पहला किस्सा मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं एक रिहैब सेंटर में भर्ती था। लगभग 2 महीने हो चुके थे और अब शरीर से सुदृढ़ बन चुका था। काफी सारी चीजें शेयरिंग वेयरिंग करना सीखना सीख गया था। लिटरेचर का छोटा मोटा ट्रांसलेशन वांसलेशन भी करता था। तो वहां पर वो जो एक 60-65 लोगों का जो ग्रुप था, उसमें थोड़ा बहुत एक लीडरशिप जैसा मेरा एक रोल जैसा होने लगा था। और आई वॉज एंजॉइंग माई सेल्फ, क्योंकि ना कोई जिम्मेदारी है, ना बाहर की कोई टेंशन है, ना कोई काम धंधा करने का, ना कोई पैसा कमाने का है। और यहाँ पर ये अपने एक ग्रुप है, ये ग्रुप में थोड़ा बहुत लिटरेचर वगैरह ट्रांसलेशन करके जरा शेयरिंग वेयरिंग करो, तो मुझे चाहिए वो इम्पोर्टेंस मिल रहा था मुझे। आई वॉज, क्या कहते हैं कि मैं वो कंफर्टेबल हो चुका था वहां पर। ऐसे में अ, वहां पर एक साइकोलॉजिस्ट लड़की आती थी। अब ये दिखने में काफी खूबसूरत थी। तो हम सभी लुक्खे, घर द्वार से काफी टाइम से दूर, तो सभी को उसके प्रति आकर्षण तो लगता ही था। लेकिन एक मैं था जो खाली आकर्षण सुनकर बोलकर निकलने वालों में से नहीं था। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो मैंने उस लड़की के साथ में बात करना शुरू कर दिया। अरे पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है ना भाई, मुझे शेयरिंग करना है ना, मुझे खुलकर बात जो करनी है। तो मैं वो लड़की के साथ में खुलकर बात करने लगा और उसके साथ में ज्यादा वक्त बिताने लगा। अब वो भी साइकोलॉजिस्ट थी, लेकिन शायद जूनियर थी, नई नई थी। और शराबियों के साथ में बहुत ज्यादा शायद उसका अनुभव नहीं था। तो वो भी मेरे साथ में बात कर रही थी, मेरे से शराबी मनस्थिति के बारे में जानना चाहती थी। ऐसे हमारे एक 4-6 सेशंस हो जाने के बाद एक दिन वहां पर हमारे डॉक्टर जेरजानी थे, ही वॉज द साइकेट्रिस्ट। उसने मुझे बाजू में बुला लिया और मुझे बोला, बोले पूछन, शराब से दूर होने के बाद में 3 प्रकार की प्रॉब्लम्स होती है। मैं बोला अच्छा, क्या? तो सबसे पहला बोलता है पेट की, मतलब कमाने की। क्योंकि अभी सब कुछ गया हुआ है, नौकरी गया हुआ है, पैसा गया हुआ है, करियर डूबा हुआ है। अब दोबारा अपने पैरों पे खड़ा होके अपनी कमाई, अपना पेट चलाने का, अपने फैमिली का पेट चलाने का, तो सबसे पहली समस्या है पेट की। मैं बोला ठीक है। तो बोला तूने तो कुछ सोचा ही होगा यहाँ से बाहर निकलने के बाद में तू क्या काम करेगा। एंड एक्चुअली स्पीकिंग, मैंने सोचना बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी पिछली नौकरी तो गई हुई है। बाहर निकलने के बाद में क्या होगा उसका विचार करके भी मुझे डर लग रहा था, तो मैं उसके बारे में सोचना नहीं चाहता था। फिर बोला दूसरी प्रॉब्लम है पेट के ऊपर की। मतलब बोला बोला दिमाग की रे, तू है किधर, तू कर क्या रहा है, तेरे को करना क्या चाहिए, तेरा फोकस क्या होना चाहिए, तू इधर आया किस लिए है। वो तू जिस चीज के लिए यहाँ आया है वो चीज कर रहा है कि कई ख्यालों की दुनिया में कहीं और खो रहा है। और मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ पर मैं एक रिहैब में बंद अवस्था में मिलने वाली जो रूखी सूखी थी वो खाकर अपने चंद लोगों के बीच में जो मैं एक लीडरशिप का रोल कर रहा था, उसमें मैं खुश। वो टॉयलेट साफ करने को बोल रहे तो मेरे जैसा टॉयलेट कोई साफ नहीं करेगा, ये मेरा ईगो। मगर झाड़ू मारने का तो साला मेरे जैसा झाड़ू कोई नहीं मारेगा, ऐसा मेरा मेरा बिहेवियर था। यानी मैं हूं कौन?
मैं आया कहाँ से हूं, मैं आया किस लिए हूं, मैं कर क्या रहा हूं, ये सब चीजों से, रियलिटी से मैं दूर, मैं वहां पर भी अपनी चलाने का प्रयास कर रहा था। और तीसरा प्रॉब्लम बोलता है पेट के नीचे का। अब मैं जानता था कि ये जो लड़की के साथ में मैं समय बिता रहा हूँ, ये सबकी नजर में आ रहा था। ये लड़की के साथ में जो मैं बात कर रहा था, ये सबको दिखाई दे रहा था। और वो बोलता है कि घर में तेरी बीवी परेशान है, कैसे वैसे तेरे महीने के पैसे चुकते कर रही है, तेरी चिंता करते करते सूख गई है, तेरे छोटे बच्चे को संभालने का कैसे उसके सामने बड़ी चिंता लगी हुई है, और तू भाई इसके पीछे लगा पड़ा हुआ है। सो ये तीनों जो प्रॉब्लम्स है ना तेरे, व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन बिहाइंड दिस, हैव यू थॉट अबाउट दिस? और मैं ऑनेस्टली बोलने का, तो मैंने तब तक सोचा नहीं था। मैं सिर्फ रिएक्ट कर रहा था, मैं कॉन्शियसली एक्ट नहीं कर रहा था। मैं सिर्फ जो परिस्थिति में डाला हुआ है, यह परिस्थिति में से ज्यादा क्या निकाला जा सकता है, मैं सिर्फ उसका विचार कर रहा था। लेकिन गंभीरता से मैं इस परिस्थिति में आया क्यों हूं, इसके प्रति विचार करने के लिए जो शांतता चाहिए, वो शांतता मुझे मिल नहीं रही थी। एंड तभी उसने मेरे को बोला, यू नीड टू टॉक, बट यू नीड टू टॉक टू मी। वो बोलते तेरे को बात करने की जरूरत तो है, लेकिन वो लड़की से नहीं, तेरे को मेरे से बात करने की जरूरत है। एंड आई रियलाइज्ड कि वहां पर मुझे वो लड़की साइकोलॉजिस्ट नहीं दिख रही थी, मेरे को आइटम दिख रही थी। मुझे वो लड़की मेरा साइकेट्रिक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दिख रही थी, मेरी शारीरिक जरूरत की सॉल्यूशन मुझे वो दिखाई दे रही थी, मेरे बोर्डम का सॉल्यूशन दिखाई दे रही थी, मेरे उस सुनसान जीवन में कुछ सपनों के रंग भरने वाली एक डिस्ट्रैक्शन करके मुझे वो लड़की चाहिए थे। मुझे उसके साथ में कोई खुलकर बात नहीं करनी थी। तो मैं उसको वो चीजें सुना रहा था जो उसे सुननी थी, मैं उसको वो चीजें नहीं सुना रहा था जो मुझे कहनी चाहिए थी। और वहां पर वो जो बात है कि मुझे उस दिन पता चला कि पूषण, यू नीड टू गो डीपर इनसाइड, तेरे अंदर जाकर ये चीजें करने की जरूरत तेरे को क्यों निर्माण होती है, वहां तुझे जाना होगा। वो कौन सी ना बुझी हुई प्यास है, वो कौन सी एक कंटिन्यूअस लोगों का अप्रिसिएशन मिलने की प्यास है, वो कौन सी हमेशा लोगों की नजर में तुम आगे 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 बढ़ने की जो एक न बुझने वाली प्यास है, वो क्यों है? इसके पीछे का जो डीप सेंस ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, इसके पीछे का तुम्हारा जो एक ऑकवर्डनेस है, तुम खुद के साथ में अकेले डिस्कम्फर्ट में रहते हो, अनकंफर्टेबल रहते हो, इसके लिए हमेशा तुमको किसी ना किसी के साथ होने की जरूरत होती है। और वो खाली साथ नहीं, तुम वो मीनिंगफुली साथ नहीं रख सकते हो, तुम्हें उसके ऊपर या तो हावी बनना होता है या तो उसका गुलाम होना होता है। तुम नॉर्मल नेचुरल हेल्दी ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप्स बनाने की तुम्हारी क्षमता ही नहीं रही है। और ये जो इंसाइट मुझे उसने दी थी, तब से मुझे रियलाइज हुआ कि काश, काश अगर मैं उसके साथ में बोलना चालू नहीं करता, तो मुझे ये समझ में नहीं आता। अगर मैं अपने ही आप में रुका रहता, तो मैं वो जो लड़की थी, उस लड़की की जैसे मैं अलग 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 लड़कियों को ही खोजते रहता, और अलग 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 बेवड़ों के ग्रुप्स में खुद को अप्रिसिएशन मिलने का प्रयास करते रहता, और मैं लोगों के सामने इंप्रेशन बनाने के चक्कर में रह जाता। लेकिन खुद की नजर में जो खुद का इंप्रेशन होना है, वो हमारा एक पुराना मेंबर था फ्रैंक भी, वो हमेशा बोलता था, खड़ा करता था और बोलता था, आप पूछे ना आज कौन से कलर का अंडरवेयर पहना है रे तूने। और मैं साला खड़ा हो गया, मैं मुझे याद नहीं आ रहा था मैंने कौन से कलर का अंडरवेयर, मैंने शायद ब्लू कलर का पहना है। बोलता है चूती है, मतलब उसके बात करने का ही ढंग ऐसा था, गाली वाली देखे।
बोले कौन से कलर की अंडरवेयर पहनी है वो तेरे को ख्याल नहीं है, और दुनिया में साले तू ऐसी बातें करता है जैसे करोड़ों का तूने ठेका लेके रखा हुआ है। खुद के बदन पे क्या है उधर तेरी निगाह नहीं है। तेरे को खुद का चेहरे का आनंद देखने के लिए तेरे को आईने में देखना पड़ता है, ऐसा तू लड़का। सो आई रियलाइज्ड कि मेरी खुद के तरफ देखने की जो निगाह है वो बाकी लोगों की नजरों से थी। अगर सबकी नजर में मेरे बारे में अगर प्यार है तो मैं प्यार करने लायक हूं। अगर सबकी नजर में मैं इंटेलिजेंट हूं तो मैं अपने आप को इंटेलिजेंट समझूंगा। अगर सबकी नजर में मैं लीडर हूं तो फिर मैं अपने आप को लीडर समझूंगा। मेरी खुद की ऐसी कोई पोजीशन कोई थी नहीं। मेरा खुद के बारे में कोई राय कोई ओपिनियन कोई था ही नहीं। लेकिन ये जो इंसाइट्स मुझे मिली ये खुलकर बात करने के वजह से मिली। जब भी जब भी बिल यहां पर कहता है, इवन बिफोर आवर ड्रिंकिंग गॉट बैड एंड पीपल बिगेन टू कट अस ऑफ, नियरली ऑल ऑफ अस सफर्ड द फीलिंग दैट वी डिडंट क्वाइट बिलोंग। Either we were shy and dared not draw near others, or we were apt to be noisy, good fellows, craving attention and companionship, but never getting it. यानी मैं ये तमाशा करके लोगों के सामने कुछ पिक्चर दिखा के भी उसमें से मुझे शांतता नहीं मिल रही थी, उसमें से मुझे वो समाधान नहीं मिल रहा था। मैं वो टेम्पररी समाधान खींच लेता था, लेकिन वो इवेंट खत्म हो गया कि मैं वापस लोनली, वापस मैं अकेला, वापस मेरे डर, वापस मेरे सभी जो एंजाइटी इरिटेबिलिटी जो है वो वापस दोबारा आने लगते थे। ये एंजाइटी इरिटेबिलिटी डिप्रेशन से बचने के लिए ये मेरे सब तेवर चल रहे थे, ये मेरे सब ताव चल रहे थे। आज भी मैं कई बार देखता हूं कि ये स्टेप 5 ये कोई वन टाइम एक्सरसाइज नहीं है कि चौथी पायरी हो गई, अभी एक आदमी पकड़ लिया और उसके साथ में चौथी पायरी बोल दी और खत्म हो गई। ये ऐसा प्रोसेस ही नहीं है। दिस होल प्रोसेस, ये जो पांचवा कदम है ये प्रक्रिया है खुद के अंदर के बीमारी के बारे में बोलने की। अंदर अपने अंदर झांक कर, सच्चाई से झांक कर, वो जो मेरे जो अंदर का जो कमीनापन है, जो स्वार्थीपन है या जो लोनलीनेस है, उसको खुलकर बात करने की। और अगर मैं ये कर पाया, देखो आज भी जब भी मैं एक एक ग्रुप में जाता हूं तो मुझे ऐसे लगता है कि आई हैव कम टू द प्लेस वेयर आई बिलोंग। वो वो लोग अनोखे होंगे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मैं सबको हाय हेलो करना चाहिए। एक आध दूसरा नया मेंबर आया होगा तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने जाके उसके साथ बात करनी चाहिए, उसको बुलाना चाहिए यार। मुझे ऐसे नहीं लगता कि अरे मैं ये फलाने फलाने गांव में आया हूं और यहाँ का एक भी मेंबर मुझे पहचानता नहीं है, मैं कितना अकेला पड़ गया हूं। मुझे ऐसे लगता है कि अरे मेरे साथ में मैं इतने सारे अनुभव लेके आया हूं, मैं कैसे इन लोगों के साथ में बांटूं। ये जो प्रक्रिया है, ये जो खुलकर बात करने की जो क्षमता जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने मुझे दी हुई है, वहां पर मुझे प्राप्त हुई। द प्रोसेस ऑफ फिफ्थ स्टेप बिगैन विथ माय स्पॉन्सर। ये पांचवा कदम लेने की प्रक्रिया शुरुआत जरूर मेरे स्पॉन्सर से हुई, लेकिन आज मैं देखता हूं कि उसका डेली लाइफ में मेरा जो प्रैक्टिस है, जो यूटिलाइजेशन है, वो हर मेंबर के साथ, हर सदस्य, कोई नया आदमी बैठा होगा और वो मेरे साथ बात करे तो मैं पूरी तरह से खुलकर उसके साथ में बात कर सकता हूँ। मुझे एक किस्सा आखिरी बताता हूँ इस बारे में, खुलकर बात करने के बारे में। हम लोग औरंगाबाद गए थे, मैं और मेरी बीवी, और हम हमारा एक जॉइंट सेशन रखा था वहां पर औरंगाबाद फेलोशिप में। और ऐसे 150-200 लोग वहां पर जमा हुए थे, फैमिलीज ए आर सब खड़े हुए थे और सब सब जमा हुए थे और हमको बात करने का मौका दिया। और नॉर्मली जब भी कपल शेयरिंग होते हैं तो हम पहले कैसे गलती की है और आज कैसे एक दूसरे को संभाल के लेने का प्रयास करें, कैसे हम लोग बहुत खूबसूरत जिंदगी, यही बताने का प्रयास करते हैं। और जो जो घिनौनी बातें हैं उनको छुपाने का प्रयास करते हैं। उस दिन मैंने और मेरे पत्नी ने
हम लोगों ने पूरी ओपनली हमारे शादी में आई हुई मुश्किलें, शादी में मैंने उसका तोड़ा हुआ भरोसा, किए हुए लफड़े, उसको पहुंचाई हुई तकलीफ, सोबराइटी में भी मैंने जाकर किस प्रकार से कितना इनसेंसिटिव बिहेवियर किया, पूरा अपना अपना फैमिली, अपना पैसा, अपना बिजनेस, किस प्रकार से अपने रिश्ते, समाज की प्रतिष्ठा, किस प्रकार से मैंने दांव पर लगा दी थी बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड सेक्स इंस्टिंक्ट। और वो उसके ऊपर से कैसे हम लोगों ने हमारा रिलेशनशिप इन सोबराइटी ऑलमोस्ट केम टू द ब्रेकिंग पॉइंट। और वहां से हम लोगों ने एक दूसरे के साथ और हमारे स्पॉन्सर्स के साथ और औरों के साथ में बात करते करते हम दोनों ने कैसे अपने आप को संवारा, और आज दोबारा हम एक दूसरे के ऊपर कैसे भरोसा रखकर एक दूसरे के साथ में जिंदगी जीने का प्रयास कर रहे हैं, ये हम लोगों ने आत्म अनुभव कथन किया। एंड एवरीबडी वाज शॉक्ड। सबको ऐसे लगा कि तुझे साले 200 लोगों के सामने तूने ऐसी बात की कैसे। मैं बोला ये 200 लोगों में से 100 लोगों के घरों में ये जलती हुई बीमारी तो होगी जरूर, लेकिन बात करने को हम सभी सीखे ही नहीं है ना। हम जो घिनौनी बातें हैं उसको दबाना ही सीखे, हम छुपाना ही सीखे। जो अंदर के सचमुच जो डर निर्माण करने वाले, जो घृणा निर्माण करने वाले जो अनुभव है, हम दबाने को ही सीखे हुए हैं। जब तक हम खुलकर बात नहीं करेंगे तब तक वहां हीलिंग नहीं है। तो अगर मेरे पत्नी की अनुमति है मुझे ये बोलने की, और मेरे पत्नी को उसको हुआ मेरे वजह से तकलीफ है वो बोलने की, मैं उसको अनुमति देता हूं, तो जो खुलकर इसके बारे में बात होगी उसी से मेरी हीलिंग होगी। और ये सुनते सुनते बाकी लोगों को करेज मिलेगी कि वो भी ये खुलकर बात करने का ये टप्पा उठा सके। सो अगर मैं सोचता हूं कि यहाँ पर इन द प्राइवेसी, सोब्राइटी की शुरुआत में इन द प्राइवेसी ऑफ माय स्पॉन्सर, कि मैं, मेरा ईश्वर और मेरा स्पॉन्सर, इनके साथ कंपेनी में ही मैं ये करूं, वहां से लेकर जब व्हेन यू लर्न द आर्ट ऑफ ओपनिंग, जैसे खुलकर बात करने की प्रक्रिया आप सीख जाते हो, समझ जाते हो, और उसके जो गुण है, उसके जो अनुभूति है जो वो प्राप्त करने लगते हो, तब जाके फेलोशिप में आपको अपने बारे में कुछ भी छुपाने का इच्छा नहीं होने लगता है। मुझे याद है यही जब ये लफड़ा मेरा चल रहा था, उसके बाद में मैं एक दफा जाके फादर जो को मिला और उनको बता रहा था मैं ऐसा ऐसा हुआ, मेरा ऐसा ऐसा हुआ, मैंने वाट लगा दी वगैरह। और उसने बोला जा और फेलोशिप में जाके बात कर। अब तब तक मैं काफी पॉपुलर हो चुका था फेलोशिप में, मैं ट्रस्टी बन चुका था, मेरी इमेज हो चुकी थी, मैं कनाडा में जाकर 60-70 हजार लोगों के सामने शेयरिंग करके आया था। क्या मैं तो हवा में उड़ रहा था। और मेरे जैसा आदमी सोबराइटी के बारे में बड़े बड़े भाषण देने वाला ऐसी कमीनी हरकत कर सकता है, ये मेरे को आई हैड एन इमेज टू प्रोटेक्ट। मैं सबके सामने अपनी इमेज बनाए घूम रहा था, और ये इमेज लेकर मैं ये में जाके शेयरिंग कैसे करूं। और फादर ने मुझे बोला if that is the case, stop going to that bloody fellowship, because if you can go there and not share, it's not worth going there. अगर तू ए में जाकर भी इमेज बनाने की बात कर रहा है और खुलकर बात नहीं कर सक रहा है, तो वहां जाने का नौटंकी क्यों करता है। अगर वहां जाना है तो खुल के बात करने के लिए जा, वरना मत कर ये नाटक वहां जाने का। एंड मैं जाग गया दोस्तों, मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कर क्या रहा हूं यार। बार बार लगातार मैं वही वही ट्रैप्स में कैसे अटकता हूं। मेरे लिए कोई नए नए ट्रैप्स नहीं है, मेरे लिए वही पुराने ट्रैप्स है। जब ये मैं उम्र के 14 साल का था, वहां से लेके उम्र के 54वें साल तक वही ट्रैप में मैं बार बार क्यों गिरता हूं। इनके बारे में जब तक मैं खुलकर बात नहीं करूंगा, सेल्फ अवेयरनेस नहीं लाऊंगा, और उसके ऊपर वन डे एट ए टाइम कॉन्शियसली काम नहीं करूंगा, और लोगों की सुनेगा नहीं, मेरे सत्सद विवेक बुद्धि इन चीजों पर काम नहीं करती है, तो दूसरे की सत्सद विवेक बुद्धि उधार लेकर ही मुझे अपने आप के ऊपर काम करना पड़ेगा। इस बात का जब ये एहसास दोस्तों होने लग गया ना, तभी जाके मुझे हीलिंग हुआ, तभी जाके मैं उस भाव से मुक्त होने लगा। सो आगे बढ़ते हैं। कितना मेरे ख्याल से ओके फाइन, वी कैन गो अहेड। ओवर टू यू चंद। ओके, स्क्रीन शेयर लकी जी आप कर रहे हैं? आई थिंक रवि, हाँ
page 57. रवि कहाँ गया? उनको कुछ काम आ गया। विजिबल इसके ऊपर वाला पैराग्राफ से पढ़ना When था। we reached, वो हमने बोल दिया लेकिन ये पढ़ना रह गया था। okay. When we reached AA and for the first time in our lives stood among people who seemed to be understand, the sense of belonging was tremendously exciting. We thought the isolation problem had been solved, but we soon discovered that while we weren't alone anymore in a social sense, we still suffered many of the old pangs of anxious apartness. Until we had talked with complete candor of our conflicts and had listened to someone else do the same thing, we still didn't belong. Step Y was the answer. It was the beginning of true kinship with man and God. This vital step was also the means by which we began to get the feeling that we could be forgiven no matter what we had thought or done. Often it was while working on this step with our sponsors or spiritual advisors that we first felt truly able to forgive others, no matter how deeply we felt they had wronged us. Our moral inventory had persuaded us all that all round forgiveness was desirable, but it was only when we resolutely tackled step 5 that we inwardly knew we'd be able to receive forgiveness and gave it to. Another great Go ahead. dividend we. That's it? Yeah. No, one more. One एक more. पैराग्राफ तो रिपीट हो गया जो हमने कवर कर दिया था। So हाँ. if you Okay. Another great dividend we may expect from confiding our defects to another human being is humility. A word of to those who have made progress in AA, it amounts to a clear recognition of what and who we really are, followed by a sincere attempt to become what we could be. Therefore, our first practical move toward humility must consist of recognizing our deficiencies. No defect can be corrected unless we clearly see what it is. But we shall have to do more than see. The objective look at ourselves we achieved in step 4 was, after all only a look. All of us saw, for example, that we lacked honesty and tolerance, that we were beset at times by attacks of self-pity or delusions of personal grandeur. But while this was a humiliating experience, it didn't necessarily mean that we had yet acquired much actual humility. Though now recognized, our defects were still there. Something had to be done about them, and we soon found that we could not wish or will them away by ourselves. Thank you. अभी भूषण जो बहाव में शेयर कर रहा था और जो सार अपने अनुभवों से उसने हमारे सामने रखा, वो हमें, मैं समझता हूं हम सभी को उसने वो मदितार्थ दे दिया है। बिल जो कहना चाहता था उसके साथ में आज के संदर्भ में जोड़ते हुए अपने अनुभवों से जो भूषण ने बताया, वो हम सभी पे उतना ही लागू होता है जितना कि उस पे होता है। सवाल यही है कि हमारा नजरिया क्या है। हमारा नजरिया शायद ये है कि हम शायद उतने खराब नहीं हैं, या हम नहीं बोल पाएंगे, या बोलना जरूरी है क्या। तो बिल इसके आगे चलते हुए बताता है कि जो अभी चंदू ने पढ़ा, कि हम ये एहसास होता है कि हमें माफ किया जा सकता है पहली बार स्टेप 5 के माध्यम से। क्योंकि जैसे हमने पहले भी बिल ने लिखा था कि कई गलतियां ऐसी हैं, कि कई अपराध ऐसे हैं, कि गुनाह ऐसे हैं जो मेरे साथ ही कब्र तक जाए। अब वो जो तकलीफ देने वाली अनुभव हैं जिनके ऊपर अफसोस होता है, वो माफ किए जा सकते हैं, कि हमें माफ किया जा सकता है। क्योंकि मेरा स्पॉन्सर ने जब मेरे से बात की और वो उस समय से निकल आया था, आज अच्छी खुशहाली में जी रहा था, तो इस बात का एहसास होता ही है। जब अपने स्पिरिचुअल एडवाइजर या स्पॉन्सर को इस कदम पे हम काम करते हैं,
तो तभी पहली बार सच्चे मन से दूसरों को माफ करने की क्षमता महसूस होती है। चाहे हमें ये क्यों ना लगता हो कि हमारे साथ उन्होंने भी बहुत अपराध किया है। ये लाजमी है कि जब चौथा कदम लिखने लगते हैं तो पहली बार मेरे से भी वैसा ही हुआ था कि लोगों ने क्या नुकसान पहुंचाया है और मैं विक्टिम हो गया हूं, मैं बेचारा हूं, मैं तो निष्पाप हूं, लेकिन लोगों ने मुझे मजबूर करने के लिए किया है, वो बनता ही है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि हमारी नैतिक सूची ने हमें ये बताया कि जब हम 4 स्टेप लिखते हैं कि हर ओर क्षमा करना जरूरी है, केवल तभी तभी हम स्टेप 5 को अपनाएंगे। हमारे भीतर से यकीन होता है कि हम न केवल क्षमा प्राप्त कर सकते हैं बल्कि क्षमा दे भी सकते हैं। तो देखिए, ये एक जीने का मार्ग, मेरे पास्ट को रिजॉल्व करने का मार्ग, यहाँ पे इसका बेनिफिट आया। आगे चलते हुए बिल ये कहता है कि अपने दोषों को किसी और इंसान के सामने स्वीकार करने से हमें मिलने वाले लाभों में सबसे बड़ा लाभ है नम्रता, ह्यूमिलिटी। अब ह्यूमिलिटी पे वो कहता है कि ये शब्द अक्सर गलत समझा जाता है। ए में प्रगति करने वालों के लिए नम्रता का अर्थ ये स्पष्ट है कि हम वास्तव में कौन है और क्या है, जो अभी भूषण समझा रहा था, अपना शेयरिंग कर रहा था। और उसके बाद सच्चे मन से यह कोशिश कि हम वैसा बने जैसा हम बन सकते हैं, न कि जो हम चाहते हैं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम को हमने कई बार सुना होगा, दिस इज अ डिजाइन फॉर लिविंग। और हमारा प्रमोशन अट्रैक्शन है, तो हम अपने से आगे चलने वाले जो ए के प्रोग्राम पे चलते हुए जो कि एक बैलेंस लाइफ जी रहे हैं उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो वैसा बन सकते हैं क्या? इसके लिए, वैसा बनने के लिए नम्रता की ओर हमारा पहला व्यवहारिक कदम क्या होना चाहिए? पहला कदम यह है कि हम अपनी कमियों को पहचानें, क्योंकि कोई भी दोष तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक हम उसे साफ साफ देख ना लें। अगर जैसे हम जनरलाइज करते जाएंगे कि भाई मेरे में तो ये भी गुण, ये भी तकलीफ है, ये भी तकलीफ है, ये भी तकलीफ है, मैं तो ऐसा भी हूं, मैं तो, ये जनरलाइज करने की बात हो गई, जो कि हम शायद अपनी शेयरिंग्स में करते हैं। लेकिन साफ साफ देखना पड़ेगा। ये केवल तभी देख पाते हैं क्योंकि स्टेप 4 में अगर हमने अपने आप को निष्पक्ष रूप से देखा हो, तो ऑब्जेक्टिवली एक तीसरे व्यक्ति की नजर से देखना पड़ेगा। तो मैं जब भी अपनी स्टेप 4 लिखता था तो मेरे को इनिशियल स्पॉन्सर ने भी यही बताया था कि लकी लिख रहा है नहीं, लकी क्या करता था, ये एक तीसरा व्यक्ति लिख रहा है जो लकी को बड़ी गहराई से जानता है, जो लकी की हर एक बात उसको पता है। वो कैसे लिखेगा? हाँ, बोला लकी को पिक्चर में से निकाल, निष्पक्ष रूप से करना पड़ेगा ये। हमने देखा कि लिखते वक्त भी स्टेप 4 में हमारे में कई बार ईमानदारी की और सहनशीलता की कमी आ गई है। और कभी कभी तो हम सेल्फ पिटी में डूब जाते थे, कभी कभी हम डिल्यूजन में चले जाते थे, भ्रमित हो जाते थे। हमारे अनुभव कई अपमानजनक थे, और अभी भी ये लिखना भी कई बार ऐसे लगता है, ये बोलना भी किसी के सामने 5वें कदम में अपमानजनक महसूस हो सकता है। लेकिन ये बोलने का मतलब ये नहीं कि हमने सचमुच नम्रता हासिल कर ली है। हमारी कमियां अभी भी वही थी, उनके बारे में कुछ करना जरूरी था। जब हम चौथा कदम लिखा तो लिखते वक्त भी हमको अपमानजनक लगा होगा, लेकिन वो केवल लिखना ही उसके बारे में पूरा नहीं है। हमारी कमियां अभी भी वही थी, और हमें जल्दी ही ये समझ आ गया कि हम केवल इच्छा या जोर लगाने से उन्हें अपने दम पर दूर नहीं कर सकते। चौथा कदम लिखते वक्त अपनी कमियों की जानकारी होती है, अपने उद्देश्य दिखने लग पड़ते हैं। अपना वो नीच वृत्ति, छोटी वृत्ति, जिसका कि बहुत एक शब्द अच्छा बनाया पुष्य ने, कमीनापन दिखता है, दगेबाजी दिखती है, धोखा दिखता है। अपने लोभ और लालच के लिए हमने लोगों का इस्तेमाल किया। लोग ऐसे थे जो साले ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे, हमें पे एकदम आंख बंद करके विश्वास करते थे, और उनको पता भी नहीं लगने दिया कि हमने कभी उनके पैरों के, उनके शरीर के नीचे से पैर ही काट दिए हमने, अच्छा अच्छा बोलते हुए। इतना बड़ा धोखा। तो ये सारी चीजें
सिर्फ इच्छा रखने से ये चली जाए। जैसे हम पीते वक्त इच्छा करते थे कि यार मेरी बंद हो जाए, यार कुछ ना कुछ हो जाए, बंद हो जाएगी, लेकिन वो सोचने से कभी बंद नहीं हुआ। और इसके आगे चलते हुए स्टेप 5 के प्रभाव से मिलने वाला एक और लाभ की बात करता है, रियलिज्म, अधिक वास्तविकता। हम इमेजिनरी वर्ल्ड में जीते हैं, हम अपनी एक दुनिया बना लेते हैं, अपने विचारों में जीते हैं। कहीं पे भी देखो, अगर कोई भी चीज का डायरेक्शन में भी भूषण ने बहुत सुंदर समझाया कि अगर वो, मैं भी अगर अपनी जिंदगी में देखता हूं कि मैं स्टेप 5 भी ले रहा हूं, तो भी मैं, जो मैंने इधर उधर से सुना, कुछ समझा, और फिर बाद में मुझे क्या लगता है उसके हिसाब से चलता हूं, वास्तविकता से नहीं चलता हूं कि एक्चुअली लिखा क्या है। और इसके लिए, रियलिटी में रहने के लिए बड़ी ईमानदारी की जरूरत होती है। जब हमने अपनी इन्वेंट्री बनाई तो हमें ऐसा कई बार लगने की संभावना है, आत्मभ्रम, सेल्फ डिल्यूशन, कि हमने कितनी भारी परेशानियां दी हैं। इससे एक चिंताजनक सवाल उठता है कि अगर पूरी जिंदगी हम किसी न किसी रूप में अपने आप को धोखा देते रहे, तो हम अब कैसे पक्का मान लें कि अभी भी खुद से धोखा नहीं खा रहे हैं। बिल उस परिस्थिति की बात करता है कि जब हम लिखते वक्त ये देखते हैं कि भाई कितना धोखा दिया हमने। कुछ सवाल उठाता है बिल, हम कैसे निश्चय कर सकते हैं कि हमने सचमुच अपने दोषों की सच्ची सूची बनाई है और उन्हें अपने आप से भी ईमानदारी से स्वीकार किया है, एडमिटेड टू गॉड, टू अवर सेल्फ एंड टू अनदर ह्यूमन बीइंग। क्योंकि जब मैं लिखता हूं तब मैंने स्वीकार भी करना है। इसके लिए ये सवाल उठता है कि हमने ईमानदारी से उन्हें स्वीकार किया है, लिख तो दिया है, कि अभी भी मन वो जस्टिफाई ही कर रहा है, क्योंकि हमें डर है। आत्मदया और आहत भावनाएं सताती हैं, इसलिए बहुत संभावना है कि हम अपने आप की पूरी तरह निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं कर पाए थे। कभी बहुत अधिक अपराध बोध और पछतावा हमें अपने दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की ओर ले जाता है, और कभी गुस्सा या अहंकार उस धुएं की परत की तरफ बन जाते हैं जिसके पीछे हम अपने कुछ दोष छुपा लेते हैं और उनकी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं। संभव है कि उन छोटी बड़ी कई कमजोरियों से बाधित थे जिनके बारे में हमें कभी पता भी नहीं था, क्योंकि अपने चौथे कदम में हम सर्चिंग वर्ड यूज करते हैं, शोध करने वाला, एक ढूंढने वाला। बहुत सारी चीजें हमें साफ साफ दिखाई देती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती है। इसके लिए ये बिल्कुल साफ था कि अकेले बैठकर खुद की इन्वेंट्री करना और केवल उसी आधार पर अपने दोषों को स्वीकार करना काफी नहीं होगा। मन में ये बात आ जाती है कि मैंने अपनी इन्वेंट्री लिख ली, अब इसको किसी के सामने बताने की क्या जरूरत है, मैंने स्वीकार तो कर लिया दोषों को। लेकिन बिल कहता है काफी नहीं होगा। अगर हमें सचमुच अपने बारे में सच्चाई जाननी और माननी है तो हमें बाहरी मदद की जरूरत होगी, ईश्वर की मदद और दूसरे इंसान की मदद। केवल तभी अपने बारे में खुलकर बात करने से, बिना कुछ छुपाए और सलाह लेने तथा मार्गदर्शन स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसके बाद शायद हम थोड़ा ईमानदारी और वास्तविक नम्रता के मार्ग पर कदम रख सकते हैं, यानी कि रियलिटी में आ सकते हैं। रियल ह्यूमिलिटी की बात यहाँ पे बिल करता है। तो ये सारे, मेरे ख्याल से ये पैरा कवर हो गए हैं अपने। एंड इसके ऊपर पुषण अभी कर लें क्योंकि 10 ही मिनट बचे हैं। सो अगर किसी के सवाल होंगे अभी तक तो 10 मिनट में हम लोग सवाल ले सकते हैं। बेटर। या तो फिर एक में इसका जो एक्सपीरियंस है, बट वो एक्सपीरियंस रादर ये लर्निंग है, वो मैं शेयर कर सकता हूँ। लेकिन पहले देखते हैं कि अगर किसी की कोई सवाल है तो एक दो सवाल हम लोग इसमें से ले सकते हैं अभी तक, और फिर नहीं है तो मैं वो इनसाइट शेयर करूँ। ओवर टू यू।
भूषण चंदू। डी। या भूषण डी, अपना सवाल पूछिए प्लीज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूषण है, मैं शराबी हूँ। भगवान की कृपा, परिवार का साथ है, फेलोशिप की मदद से शराब नहीं पिए। मैं थोड़ा सा ये थोड़ी क्लियरिटी चाहता हूँ कि जैसे मैंने पहले भी एक बार फिफ्थ स्टेप किया था और एक बार अभी कुछ समय पहले भी किया है, तो मुझे एक्चुअली अभी भी थोड़ा सा ऐसा लगता है कि शायद मैं एग्जैक्टली जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा डाउट लगता है अपने अंदर ही, तो वो कैसे क्या क्लियरिटी आएगी उसके लिए? सबसे पहले अगर फोर्थ स्टेप आपका सर्चिंग एंड फियरलेस नहीं हुआ होगा तो फिफ्थ स्टेप आपका हमेशा अधूरा रहेगा। यानी आपने अगर बारकाई से चौथा कदम नहीं किया है तो पांचवें कदम में आपको जो मुक्तता, जो शांतता, जो आनंद मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। शायद आपको ऐसा लगेगा कि मैं पूरी तरह से व्यक्त नहीं हो पाया हूं क्योंकि मैंने अपने आप को पूरी तरह से खोला हुआ ही नहीं है। सो बिल डब्ल्यू यहाँ पर क्लियरली सेपरेट करता है कि चौथे कदम में हम लोग एनालिसिस करते हैं, बट एनालिसिस करना इसका मतलब उसमें से बाहर निकलना नहीं है। उसमें से बाहर निकलने के लिए हमको वो बोलना है। बट अगर एनालिसिस ही नहीं किया, अगर आपने चौथा कदम ही अगर ऊपरी ऊपरी तौर पर से लिया हुआ होगा तो एनालिसिस ही आपका आधा अधूरा होगा। तो नेचुरली पांचवा कदम भी आपका आधा अधूरा होगा और बहुत सारे जो सीक्रेट्स जो आपके दिल में जो रह गए वो रह ही गए क्योंकि उसको आपने बाहर लाया नहीं है। सो जैसे मैंने कहा कि ये कोई वन टाइम प्रक्रिया तो है नहीं कि भाई एक दफा हो गया, माना समाधान नहीं मिला, अब मैं क्या करूं। ऐसा नहीं। सो कीप ऑन डूइंग इट। अभी थोड़ा सा समय फेलोशिप में होने के बाद में आपकी हिम्मत भी बढ़ चुकी होगी, खुलकर बात करने की क्षमता भी बढ़ चुकी होगी, थोड़ी सी ऑनेस्टी और ह्यूमिलिटी भी बढ़ गई होगी और ये बारकाई से करने की जरूरत भी अभी आपको बेहतर महसूस हो रही होगी। तो गिव इट वन मोर शॉट, और एक बार लिखिए जो ये हम लोगों ने दिया हुआ है ना, कैलिफोर्नियन फोर स्टेप इन्वेंटरी का जो शीट्स लास्ट टाइम विठल भाई ने शेयर किए थे हिंदी, मराठी, इंग्लिश में, तो अगर आप दोबारा करना चाहते हैं तो कर लीजिए क्योंकि वो तरीका आप अपनाओगे तो आपको कई सारे, क्योंकि वो सवाल है और वो सवालों के जवाब सिर्फ आपको देने हैं और वो जवाब देते देते आपको खुद के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलेगी जो आपको स्पॉन्सर के साथ में बात करने में भी बड़ा मजा आएगा। सो गिव इट वन मोर शॉट। या, थैंक यू। दोस्तों अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं आप, या डायरेक्ट भी सवाल पूछ सकते हैं। कोई सवाल है नहीं किसी को? नहीं है। कंप्लीट क्लैरिटी है सबको? क्लैरिटी और नींद भी आ रही होगी। हाँ, और भूख भी लगी होगी शायद। सोमेश हाँ, पी। नहीं हेलो। उठे हैं। या हम्म। सोमेश जी पूछिए अपना हेलो। सवाल। हाँ थैंक सोमेश। यू फॉर योर सर्विस। नमस्कार दोस्तों, शराबी सोमेश। अभी जैसे कि शेयरिंग में और एक चीज बताई गई थी कि जो हम शेयरिंग करते हैं ओपनली बोलते हैं, माइंड ओपन माइंडेडली बोलते हैं, तो वो बूस्टिंग का एक वर्ड यूज किया था कि ये मैं जो शेयर कर रहा हूँ, तो मुझे लगता था पहले कि जैसे कि कोई लिटरेचर स्टडी हो रही है तो लिटरेचर स्टडी में पर्टिकुलर पैराग्राफ से लिंक मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं चौथा पांचवा स्टेप कर रहा हूँ, ऐसा मुझे किसी मेंबर ने बताया था, सीनियर मेंबर ने। लेकिन अभी यहाँ पे बताया गया कि वो चौथा पांचवा नहीं कहलाएगा। और ठीक है वो, बट कुछ हद तक तो वो कह सकते हैं ना कि यदि मैं लिटरेचर रीडिंग कर रहा हूँ, बिग बुक पढ़ रहा हूँ और उस पैराग्राफ से रिलेटेड मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, तो वो चौथा पांचवा कहला सकता है या नहीं कहला सकता है, जैसे भी कंफ्यूजन था थोड़ा। तो पूरा कार्यक्रम जो है, मतलब जो हम लोग कहानियां भी कहते हैं, स्टोरीज भी हमारी जो कहते हैं, या हम लोग बिग बुक पढ़ते हैं या कोई भी किताब पढ़ते हैं, उसमें से अनुभव जो पढ़ते हैं, तो ये सभी हमको अपने खुद के बारे में विचार करने को लगाता है। बेसिकली ऑब्जेक्टिवली लुकिंग एट योर ओन सेल्फ, यही हमको पूरा कार्यक्रम सिखाता है, पूरा स्टेप वर्क,
हमको पूरे ट्रेडिशन हमारी फेलोशिप की तरफ देखने को सिखाता है और अपने आप की तरफ देखने को सिखाता है, वैसी स्टेप्स बेसिकली अपने आप को देखने को सिखाती है। तो जब भी आप कोई भी पैराग्राफ पढ़ के उसके ऊपर आप शेयर कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप अपने मन के कोने में से जो भी अनुभव है उनको आप बाहर निकाल रहे हो। लेकिन क्या आप जैसे डिफरेंशिएशन बिल डब्ल्यू ने ये स्टेप में किया कि जो जनरली लोगों के सामने बोली जा सकती है, ऐसी बातें बोलने से आपका पांचवा कदम होता है? तो नहीं। जो आप शेयरिंग में ही कह सकते हो, उससे आपको कोई बहुत ज्यादा खुद के प्रति शर्मिंदगी या घृणा या काश मुझे ये बोलना नहीं पड़ता, ऐसे टाइप की फीलिंग्स आती है? अगर नहीं आती है तो इसका मतलब वो आपको रिलीफ नहीं देगा। ये आप टॉप ऑफ द माइंड पे ऊपर से बोल रहे हो, जनरल शेयरिंग में जनरल किए हुए अनुभव अगर बोल रहे हो। जो रियली जो ट्रबलसम अनुभव है वो आप 50 लोगों के सामने बोल सकते हो क्या? नहीं। वो आपने बोलने चाहिए क्या? ऐसे कई बार हमारे यहाँ पर एक नए मेंबर आए थे, उनका नाम नहीं लेता हूं, एक उदाहरण के तौर पर। उनका हाल ही में डिवोर्स हुआ था और पत्नी उनको छोड़कर गई और उस उस सदमे में से वो अभी तक पूरी तरह से बाहर नहीं निकले हैं। और उन्होंने उसके बारे में बोलना चालू कर दिया और वो बोलने के बाद में वो इतना डिस्टर्ब हो गए कि वो अनुभव और वो सब ने मैंने क्या क्या किया है उस बात का एहसास, और वो बोलते बोलते उनको स्टेज पे बोलते बोलते ही रोना आने लगा और उसके बाद में वो सह नहीं सके, जाके पी गए। इसके लिए हमेशा कहा जाता है कि हम लोग एए मीटिंग में वी शेयर इन अ जनरल वे व्हाट वी वर लाइक, व्हाट हैपेंड एंड हाउ आर वी टुडे। तो हम लोग एक सामान्य तौर पर शेयरिंग करते हैं जब हम लोग समूह में होते हैं। लेकिन जो गहराई वाले जो जो सदमे वाले जो अनुभव रहते हैं वो हम लोग विद स्पॉन्सर हम लोग बात करते हैं। उसका और एक भी कारण ऐसा है कि जहां हमारी सतसत विवेक बुद्धि काम नहीं करती है, वहां पर किसी और की सतसत विवेक बुद्धि की हमें जरूरत पड़ती है। वो सतसत विवेक बुद्धि हम लोग बोरो जो करते हैं वो स्पॉन्सर की करते हैं, जब तक हमें अपने आप पर इतना विश्वास नहीं हो। सो यस, जब भी आप पैराग्राफ सुनकर उसके ऊपर शेयरिंग करना चालू करते हो तो यहां से बोलने की प्रक्रिया शुरू होती है, एनालाइज की, अपने अंदर भीतर जाकर अपने अनुभवों को याद कर कर पेश करने की शुरुआत होती है। लेकिन क्या इसी को पूरी तरह से पांचवा कदम कहा जा सकता है? तो मैं बोलूंगा नहीं, ये अधूरा होगा। ये शुरुआत अच्छी है लेकिन इससे पूरा रिलीफ नहीं मिलेगा। ओके आकाश, अपना सवाल पूछिए प्लीज। किशन भाई, क्या पांचवे कदम को पार्ट पार्ट वाइज भी किया जाता है? सो कई सारे लोगों का ऐसा मानना होता है, खास करके कुछ लोग एक साथ में बैठकर एक ही समय पर पूरा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इतना समय देना किसी को भी संभव नहीं हो सकता। अभी फॉर एग्जांपल ये जो कैलिफोर्नियन 4 स्टेप इन्वेंट्री है, उसमें कुछ 270 280 सवाल है और वो आपके बचपन से लेकर आपके आज तक के हुए हुए सभी चीजों को एनालाइज करती है। ये पूरा का पूरा आप एक साथ में कर ही नहीं सकते हो। मैं रिसेंटली अभी किसी के साथ में कर रहा था वर्चुअली, हम लोग 1.5 मंथ ये हमारा 5th स्टेप का प्रोसेस चल रहा था, क्योंकि ये कोई जल्दी से बोल के खत्म करने वाली बात तो है नहीं, ये खुद को एनालाइज करने वाली बात है। और जितने बारीकाई से आप खुद को एनालाइज कर सकोगे उतनी मुक्तता आपको मिलने वाली है। सो डेफिनेटली आई वुड रेकमेंड दैट इट शुड बी डन इन पार्ट्स, क्योंकि ये सिर्फ कृति नहीं है, एक एक काम खत्म कर दिया वाली बात नहीं है। ये खुद को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करने की बात है और वो किया हुआ एनालाइज आपको डाइजेस्ट करना है।
वो जो बात हुई आपके स्पॉन्सर के साथ वो आपको खुद को डाइजेस्ट करनी है और उसमें बदलाव करने की तैयारी करनी है। ये पूरी प्रक्रिया अगर होनी है तो उसको समय तो देना ही होगा। भूषण, मैं 5वीं पायरी होते संग मैं जाके बिंदास दारू पी के एंजॉय किया था। एनीवेज 200 मीटिंग का समय हो गया है। एक आखिरी सवाल है भूषण, हम क्या ले सकते हाँ हैं? हाँ, बिल्कुल मुकुल। बिल्कुल। ओके मुकुल, प्लीज अपना सवाल पूछिए और इसके बाद हम मीटिंग समाप्त करते हैं। थैंक यू। माय नेम इज मुकुल अहमद कॉलेज। क्वेश्चन सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि जिसके साथ मैंने स्टेप्स किए, नाउ ड्यू टू सम रीजंस अब मैं आई एम नॉट बीन एसोसिएट विद हिम। अब मेरा कोई और स्पॉन्सर है, बट मेरे मेरे को ये लगता है कि यार मैंने अपने स्टेप 4 स्टेप 5 मैंने उसके साथ बहुत कुछ डिस्कस किया है, बहुत समय से उसके साथ। तो यार कहीं वो बोल ना दे, क्योंकि अब मैं उस पर बात भी नहीं है, क्योंकि कुछ डिफरेंसेस ओपिनियन हुआ जिसकी वजह से मैं उससे अलग हो गया। बट अब इसका, अब मैं किसी और के साथ हूँ मैं, तो ये क्या ये घंटी लटकती रहेगी? मतलब कि क्या, मतलब ये उसका क्या कर, मतलब सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका आपके हिसाब से? सो अभी ऐसा है बिकॉज कि अभी समझो। मैं उनके साथ काफी टाइम से जुड़ा हुआ था और बहुत खुल के बात की, और शायद, बट वो मेरे को लगता है कहीं आपको बोलना चाहिए यार कुछ यार। सो बहुत सारे लोगों के स्पॉन्सर्स चेंज होते हैं। कुछ इस वजह से होते हैं कि जो इनिशियल स्पॉन्सर होता है वो स्टेप 1 to 3 तक का काम अच्छे से कर सकता है, लेकिन आगे वाले प्रोग्राम में मदद नहीं कर सकता। कुछ लोगों के स्पॉन्सर उम्र के हिसाब से चल बसते हैं, बाहर गांव ट्रांसफर हो जाते हैं या कहीं अनबन हो जाती है और हम लोग अलग अलग हो जाते हैं। बट एक बात तो इम्पोर्टेंट जरूर है कि जिस किसी व्यक्ति के साथ आज आप काम कर रहे हो वो व्यक्ति ने आपको 100% जानना जरूरी होता है। तो आप कहोगे कि मैंने बड़ी गहराई से 4th and 5th स्टेप मेरी पहले स्पॉन्सर से की है, लेकिन आज के स्पॉन्सर के साथ में करना जरूरी क्या है? तो आपके लिए वो इतना जरूरी है क्योंकि अगर आपका प्रेजेंट स्पॉन्सर आपको समझेगा नहीं, आपके डिफेक्ट्स को और आप क्या काम कर रहे हैं वो समझेगा नहीं, तो वो आपको सही ढंग से मार्गदर्शन कर नहीं पाएगा। अगर मैं मुकुल को जानता ही नहीं हूं, मुकुल का दिमाग कैसे काम करता है, मुकुल की स्पिरिचुअल बैंक्रप्सी क्या है, कब है, कैसे हुई, कौन से टप्पे में हुई, मुकुल की फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसके माता पिता के संस्कार क्या है, कौन से सदमे उसको उम्र के 12वें साल में सहने पड़े, ये अगर पूरी स्टोरी मैं मुकुल के बारे में जानता नहीं हूं तो when Mukul presents his story, I don't know where he is coming from. सो आई वुड डेफिनेटली एनकरेज कि जो आपके आज के जो स्पॉन्सर है उनके साथ में दोबारा आप ये कदम लीजिए, ज्यादा गहराई के साथ में होगा और उसका ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। नो नो क्वेश्चन, व्हाट आई एम सेइंग दैट कि माय प्रीवियस स्पॉन्सर्स, आई एम, मुझे लगता है कि क्योंकि मैं काफी टाइम उनके साथ था, आई एम नॉट टॉकिंग करंट स्पॉन्सर, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पहले स्पॉन्सर जो हैं वो किसी को मेरी बातें बता ना दे, क्योंकि उनकी फितरत है कि वो नहीं बहुत मुंह पर बताएंगे, बोल नहीं देते हैं। बताएंगे, डोंट वरी। मुझे कोई भी ये लगता रहता है। नहीं, कोई भी स्पॉन्सर स्पॉन्सी की रिलेशनशिप इतनी, इट्स लाइक अ डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, इट्स अ स्पिरिचुअल रिलेशनशिप और ये अनामिकता से बंधी हुई ही रिलेशनशिप है। तो आज आपका उसके साथ में पटता भी नहीं होगा, तभी भी वो आपकी जो अंदरूनी बातें हैं वो लोगों के सामने चर्चा नहीं करेगा। इसके लिए आगे आगे वाले पन्नों में बिल डब्ल्यू बड़ी चेतावनी देता है कि हम जो स्पॉन्सर चुनते हैं वो कैसा चुनते हैं उसके बारे में भी आगे हम लोग शायद नेक्स्ट फ्राइडे वाले सेशन में उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन whoever the sponsor is, however the sponsor is, he will definitely protect your anonymity 100%, irrespective of your current relationship with him. ओके, ओके थैंक यू क्वेश्चन सर।